کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. علماء تو کہتے ہیں گمراہ آدمی ہے یہ. یہی کنفیوژن دور کرنے کے لیے آیا ہوں کہ لوگ کیوں مطلب جب حق بات واضح ہو گئی تو لوگ کیوں گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. کچھ مسائل تھے جن میں میرا آنکھنا اٹک چکا تھا، کیونکہ اہل اس مکاتب فکر کے جو عالم دین تھے نا، ان کی محبت میں بھی تھا میں کہ یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. باقی مکاتب فکر جو ان سے ہیں وہ تو بڑا مشکل ہے. یہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ لیا، مدد بھی اللہ سے مانگنی، دعا بھی اللہ سے مانگنی ہے، تو پھر اس کے بعد جا کے کہنا یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، قبر میں جا کے طاقتیں تو بڑھ جاتی ہیں. یہی نا، یہ پھر شیطانی تو ہی دے رہے ہیں لوگوں کو. اچھا اچھا اچھا. یہ پھر ریئل تو ہی نہیں نا، وہی نا کہ یہاں اٹک جاتی ہے، دل میں نہیں قرآن اترتا ہے کہ شیطانی تو ہی لوگوں کو دے رہے ہیں. اس کے اوپر بابوں کے بارے میں بیان پہلا سنا نا تو مجھے کھٹکی چیز کہ یار سارے اس کے خلاف ہی کیوں ہو رہے ہیں، خاص طور پہ ٹی ایل پی والے، کیونکہ ہم ایک وہاں پہ لاہور میں رہتے ہیں، ہمارے بالکل قریب ہیں ان کا جو آستانہ سب سے بڑا. ہمارے گھر والے جتنے بھی سارے کٹر سنی ہیں، پاپا جانی کے سارے مرید ہیں میرے علاوہ الحمدللہ. تو جب ان کی تعلیمات میں دیکھتا تھا تو جو ان کا جو عمل دیکھتا تھا تو مجھے اندر سے آواز آتی تھی کہ یہ ہمارا دین نہیں ہو سکتا. اگر وہ کہیں گے ہم نہیں سنتے انجینئر صاحب کو، تو یہ ہمارے پاس الحمدللہ ہمارا قرآن پاک ہے، کتابیں ہیں ساری اویلیبل، تو انہیں پڑھیں. تو کہتے ہیں بزرگ جاتے ہیں قبر میں طاقتیں بڑھ جاتی ہیں، اب کیا کریں. توحید تو حق یہ تو یہی ہے کہ اللہ صرف ایک ہی ہے، مدد ہر چیز صرف اللہ سے وابستہ ہے. باقی کچھ بھی آپ نبی سے بھی کچھ نہیں مانگ سکتے، صرف پکارنے کے لیے صرف اللہ کو پکار. کھٹا کر لیا انجینئر صاحب نے آپ کا کرامات سے، ہے نا. یہ سب کہانیاں ہی ہیں. اچھا کوئی نہیں، کوئی ساری حقیقت سے بہت زیادہ ہے. حقیقت وہ ہے جو کتابوں میں لکھی ہے، واقعی قرآن پاک میں جو لکھی ہے، جو صحیح بخاری اور مسلم شریف میں لکھی ہے. بس جو ایک تو شیطانی توحید ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قبروں میں جا کے اولیاء اللہ کی طاقتیں بڑھ جاتی ہیں. اصل میں یہی تو بات ہے. یہ جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ یہ جو ٹھہرا ہوا اسلام تھا نا، اس میں جان آ گئی. اچھا پھر تھوڑا سا اور آ گیا، ایک دربار آیا، اس کے اوپر ایک بھی جھنڈا نہیں تھا. تو وہ کہتے میں کہا بھائی یہ کیا سین ہے؟ کہتا اب یہ جو بابا ہے اس کی طاقتیں کوئی نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کی باتیں نا اللہ طرف پہنچاتا ہے بس. لیکن وہ ہمیں مطلب یہ بتاتے نا کہ یا کا مطلب وہ بتاتے تھے حاضر، وہ حاضر ناظر پھر بیچ میں لے کے آتے تھے. اسی کو پھر انجینئر صاحب نے چینج کیا ہے کہ نہیں، آج بتایا انجینئر صاحب نے حاضر تھا کہ کیا تھا، مفتی اکبر صاحب کو جو ریبٹل کیا ہے بتا دیا بالکل صحیح بتا دیا، جو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. کیوں آئے ہیں، جانا کدھر ہے؟ تو رستہ بتاتے تھے لیکن رستہ وہ اندھیرا ہوتا تھا. اللہ اکبر. لیکن میرا پرائمری مقصد یہ تھا کہ جو بھی قرآن و سنت کے مطابق جو موقف ہے اس کے متعلق مجھے دلائل مل جائیں، وہ بھی تھوڑی جگہ پہ، مطلب مجھے زیادہ ڈھونڈنا نہ پڑے. تو وہ انجینئر صاحب نے وہ پرووائڈ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی محمد فرحان قریشی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج 197 سیشن ختم ہوا جاتا ہے. حال میں جو لوگ آئے ہیں اب ہم ان سے کچھ بات کرتے ہیں. تو آئیے سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے جناب آپ کا؟ جی مانت علی. ہمارے بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ میں ادھر سرائل مگیر سے آیا ہوں. سرائل مگیر سے. ویسے میری جو ہے نا، میں ساؤتھ افریقہ سے آیا ہوں اسپیشلی ان سے ملنے کے لیے. کیوں خیر خیریت؟ جی ان کے جو سنے ہیں خطبات بہت اچھا لگا. علماء تو کہتے ہیں گمراہ آدمی ہے یہ. یہی کنفیوژن دور کرنے کے لیے آیا ہوں کہ لوگ کیوں مطلب جب حق بات واضح ہو گئی تو لوگ کیوں گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. میں نے کویسچن بھی یہاں پہ یہی کیا تھا کہ جب خیر اور شر تو مجھے بھی پتہ ہے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، تو لوگ کیوں گمراہی کی طرف جا رہے ہیں جب حق بات واضح ہو گئی. نہیں، اب حق تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ان کے نزدیک تو حق نہیں ہے. یہ تو سمجھنے پہ ڈپینڈ ہے. تو نہ ماننے والوں نے تو نبی کو بھی نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات کیسا رہا آج کا ایکسپیرینس؟ بہت اچھا لگا. اچھا رہا جی. آپ نے سوال کیا تھا؟ جی یہی ٹھیک ہو گیا. کب سے سن رہے ہیں انجینئر صاحب کو؟ میں نے اتنا لمبا عرصہ تو نہیں ہے، 2-3 سال سے ہی سن رہا ہوں.
क्योंकि मेरे 3 साल साउथ अफ्रीका में जो गुजरे ना टोटली इन्हें को सुना है। अकायद व नज़रियात की इस्लाह होगी। यस माशाल्लाह। अच्छा, आज इंजीनियर साहब ने मुफ्ती अकमल साहब के बारे में वो करंट अफेयर की जो स्टार्ट में किया, जी जी, और उन्होंने बताया कि तौहीद का मतलब क्या है और ये लोग क्या बताते हैं, तो आपको क्या लगता है तौहीद वो है जो ये लोग बयान करते हैं, तौहीद वो है जो वो बयान करते हैं? नहीं, तौहीद तो हक ये तो यही है कि अल्लाह सिर्फ एक ही है, मदद हर चीज़ सिर्फ अल्लाह से वाबस्ता है। बाकी कुछ भी आप नबी से भी कुछ नहीं मांग सकते, सिर्फ पुकारने के लिए सिर्फ अल्लाह को पुकारने के लिए सिर्फ मदद के लिए सिर्फ अल्लाह को पुकार सकते हैं, बाकी आप नबी से भी मदद नहीं मांग सकते। तो ये जो कहानियाँ और ये जो शैतानी तौहीद बयान करते हैं, इसका मतलब है ये अवाम को गुमराही चल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, और कौन है? अच्छा, सलाम अलैकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? ज़हीर अहमद। ज़हीर भाई किधर से आए हैं? रहीम यार खान से। माशाल्लाह, रहीम यार खान से। अकेले आए? अकेला। खैर खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। कैसे आना हुआ? इंजीनियर साहब से मुलाकात करनी थी। कब से सुन रहे हैं इंजीनियर साहब को? 2023 से सुन रहा हूँ। कैसा पाया? दिल को ठंडक पहुँची। वो कैसे? उलमा तो कहते हैं गुमराह आदमी, उम्मत का फितना। बस उन्होंने हमें गुमराह रखा पहले, यकीन करा बहुत पहले ना। अब हमारे जो हम अपने बुजुर्गों के लिए दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ताला उनका आगे आसानियाँ फरमाए, जो अकायद लेके गए। अकायद किसने दी है? बरेलवी मकतब से थे। अच्छा, जो उन्हीं से उलमा ने दी है ना, लेकिन उलमा तो आज इंजीनियर को भी गुमराह कह रहे हैं। बस वो उलमा तो नहीं है, उलमा नहीं है, उलमा नहीं मानते हैं। ठीक हो गया। अब वो अजदाद भी गए और आने वाली नस्लों को भी वो डुबोना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है, हमारी आने वाली नस्लों की आंखें खुल गई है। मेरे बच्चे जो है ना, माशाल्लाह से वो मुझे ही दुआएं देंगे कि जो वो अच्छे अकायद में लेके आए। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आज इंजीनियर साहब ने करंट अफेयर में डिस्कस किया मुफ्ती अकमल साहब को तौहीद के ऊपर, वो जो बात की, एक तौहीद तो वो है वो जो शैतानी तौहीद वो बताते हैं, जिससे वो कहते हैं जी औलिया से भी मांग सकते हैं, कब्रों में जाके ताकतें बढ़ जाती हैं। एक तौहीद वो है जो इंजीनियर साहब बयान करते हैं। क्या लगता है तौहीद क्या है? तौहीद यही है जो इंजीनियर साहब ने हमें बताई है, जो कि हकीकत है कि मांगने का तरीका क्या है, वसीला क्या होता है। वसीले के धोखे पे इन्होंने हमें किस तरीके से दूसरे जगह पे हमें ले गए, कब्रों की तरफ ले गए, जो कि हक़ाइक़ में वो नहीं है। हकीकत यही है जो उन्होंने हमें बताया। सही हो गया। मुलाकात भी हुई है? नहीं, अभी सेशन में फोटो बनवाएगा, भी लेने आया था। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा रहा। मैं तकरीबन काफ़ी अरसे से 2023 से ही ख्वाहिश थी कि एक दफ़ा जाऊँ, लेकिन 3 मिलियन होने के बाद उन्होंने कहा है ना कि आप आएँ लाजमी। मेरा स्टूडेंट आया, अगर उसको इजाज़त है, जेब दे रही है, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने दिया है, हम आए इधर। बहुत शुक्रिया भैया, जज़ाकल्लाह। आए जी, और कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम भैया? मोहम्मद। माशाअल्लाह ताला मोहम्मद भाई किधर से? गुजरांवाला पहलवानों का शहर, वो नजर भी आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? अब्दुल मनान। अब्दुल मनान। साथ हो? जी जी, भाई हैं बड़े दोनों? जी जी, गुजरांवाला से? गुजरांवाला से भाई हो? जी जी। पहले किसने सुना इंजीनियर साहब को? पहले भाई बड़े ने सुना। अच्छा जी, आपसे बात करते हैं। कब सुना? तारुफ कब हुआ? मुझे तारुफ हो गया था तकरीबन 2014 में। सुना था, एक दोस्त था मेरा, वो था देवबंद, तो वो ना हमारा ग्रुप होता था, एक तरफ बरेलवी होता था, एक तरफ देवबंदी और एलदीस होते थे। मैं एलदीस में काफ़ी करता था। मैंने कुछ देर बाद ना ये चीज़ रियलाइज़ करना शुरू कर दी कि वो ना मुझसे भी कुछ मसाइल में इख्तलाफ रखना शुरू हो चुका है। मैंने कहा क्या वजह है? वो मेरा पहले सपोर्टिव होता था। उसने मुझे कहा कि यार इब्न आलमदीन है मोहम्मद मिर्ज़ा, हम ना उसको अपना ज़्यादा फॉलो करते हैं। मैंने कहा ये कौन सा बंदा है? बहरहाल मैंने तस्वीर में 1-2 दफ़ा देखा। उसके बाद मैं तकरीबन 2020 में उसको ना मोहम्मद मिर्ज़ा को सुना। अंदाज़ मुझे पसंद नहीं था। मतलब जिस तरह लोगों ने सुना था, नई वो शॉर्ट क्लिप सुने हुए थे, फिर छोड़ दिया। कुछ देर बाद गुजरी, फिर मैंने तफसीलों सुनना शुरू कर दिया। कुछ मसाइल थे जिनमें मेरा आंकड़ा अटक चुका था, क्योंकि अहल इस मकातबे फ़िक्र के जो आलम दीन थे ना, उनकी मोहब्बत में भी था मैं कि ये ठीक हो सकते हैं। बाकी मुकातबे फ़िक्र जो उनसे हैं वो तो बड़ा मुश्किल है, वो हो नहीं सकता हक बयान करें, क्योंकि हम इनसे भी अहल इस मकातबे फ़िक्र को ये चीज़ है, जो बात करते वो दलील मांगते थे। तो जो बंदा दलील मांगता हो या दलील देता हो वो हक भी होता है। अब मसला ना बनी मैया का कर चुका था। इस मसले में आकर ना मैं काफ़ी ज़्यादा ना उनकी डिस्कस भी सुनता था, इनकी डिस्कस भी सुनता था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मेरी थोड़ी सपोर्ट मौज़म भाई ने भी की थी,
कि यार जो बनु मैया का ये मामला ना, इस मिसाइल में आके मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुका था और मुझे समझ आ चुका था अली की जैसा है ही क्यों नहीं, बनु मैया तो शाही क्यों नहीं। बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह फिर इधर आके मैं काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुका आज और first time आया? अल्हम्दुलिल्लाह हाँ फर्स्ट टाइम आया। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? बहुत आला। सवाल भी किया था? सवाल नहीं मैंने किया। हाँ सही हो गया। मेरा इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत जल्द इंशाल्लाह खुद का चैनल यूट्यूब बनाऊंगा और कोशिश करूंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द पॉडकास्ट अली भाई से करूंगा और ऐसी पॉडकास्ट करूंगा जो कि मेरा अकेले का नहीं, बहुत से लोगों के इंशाल्लाह सवालात होंगे पब्लिक के इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह मेरी यादगार पॉडकास्ट होगी। अल्लाह के जी मौजूम भाई, जी आपको तारुफ कैसा हुआ? मुझे तारुफ तो भाई ने करवाया था तकरीबन आज से 1.5 साल पहले कि अली भाई को सुने। मैंने कहा यार ये बंदा गुस्ताख साहब है, गुस्ताख रसूल है, जैसे हमने लोगों से सुना हुआ था। नहीं, उलमा अभी भी कहते तो हैं। उलमा अभी भी वो तो अभी भी कहते हैं, लेकिन हमने भी उलमा से सुना हुआ था। हम कट्टर वाबी है और वाबी थे, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने लाने बरात कर चुके हैं वाबियों से? तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मुसलमान हो गए हैं। ठीक हो गया, ठीक हो। तो भाई ने कहा इनको सुने, मैंने कहा यार नहीं ये बंदा नहीं ठीक है। आस्ता आस्ता फिर वो मैं सऊदी उम्रे पे गया, वहाँ जब मैं एक दफ़ा रूम में लेटा अली भाई की स्पीच सुन रहा, हदीस आई वो अब्दुल्ला बिन उमर वाली कि वो गा रहा है और हमारी अफसर ने कहा कि बाहर अमीर मुआविया खताबत कर रहे हैं, कहीं तुम्हारी गैर मौजूदगी को फितना ना शुमार किया जाए। जब वो हदीस मैंने बुखारी से निकाली पढ़ी, मैंने कहा यार ये मामला, फिर रिसर्च शुरू की तो फिर मैंने भाई को अप्रिशिएट किया। मैंने कहा यार आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैं गलत था। अल्हम्दुलिल्लाह फिर अली भाई को सुनना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आया। अच्छा, आज करंट अफेयर के तौर पर इंजीनियर साहब ने बात की मुफ्ती अकमल साहब के बारे में, तौहीद के बारे में वो बात हुई। क्या लगता है, एक तौहीद ये बयान करते हैं, वो अहले हदीस भी बयान करते हैं, एक तौहीद बरेलवी बयान करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से, कौन सी तौहीद सही है यार? आम बंदे को समझ नहीं आ रही। असल में अली भाई ने कह दिया कि एक रहमानी तौहीद है और एक शैतानी तौहीद है। ये जब ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन पढ़ लिया, मदद भी अल्लाह से मांगनी, दुआ भी अल्लाह से मांगनी है, तो फिर उसके बाद जाके कहना या अली मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद, कब्र में जाके ताकतें तो बढ़ जाती हैं। यही ना, ये फिर शैतानी तौहीद दे रहे हैं लोगों को। अच्छा अच्छा अच्छा, ये फिर रियल तौहीद नहीं ना आई, वही ना कि यहाँ अटक जाती है, दिल में नहीं कुरान उतरता है कि शैतानी तौहीद लोगों को दे रहे हैं। रहमानी तौहीद तो कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, उसी से हमने मदद मांगनी है और इन्हीं की किताबों से दे रहे हैं हम इनको दलाइल, लेकिन फिर भी अपने फिरके, सिर्फ फिरके की मोहब्बत में मानते ये भी हैं, मानते ये भी हैं कि हक क्या है और बातिल क्या, सिर्फ एक फ़िरके की मोहब्बत में, और यही फ़िरके की मोहब्बत इनको ले डूबनी है। अल्लाह इनको हिदायत दे। अल्लाह हिदायत दे। फर्स्ट टाइम आया आज? नहीं, मैं सेकंड टाइम आया। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया जज़ाक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जन? उस्मान याकूब, लाहौर से तशरीफ़ लाया हूँ। लाहौर कौन सी जगह से? मैं सब्ज़ाज़ार के एरिया से तशरीफ़ लाया हूँ और जी अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा आया हूँ और आपका काम माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, आप बड़ी मेहनत करते हैं। अल्लाह पाक आपको इसकी ताकत और तौफीक दे कि आप ऐसे ही काम करते रहें। मुझे भी अली भाई का नेगेटिव तारुफ हुआ था, आपको पता है लाहौर से ताल्लुक़ है और बरेलवी मकतबा फ़िक्र से पहले मेरा ताल्लुक़ था, मैं मुसलमान हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता है कि बरेलवी जो है ये दरबारों को, और मेरा भी उसी तरफ काफ़ी रुझान था। और उस्मान बिन अली हजवेरी आपको पता है, दादा अलमरूफ दादा साहब हमारे लाहौर में मौजूद हैं, तो हमारे घर वाले भी हमें शुरू से आना जाना लगा रहता था। तो जब मैंने इनका उसके ऊपर बाबों के बारे में बयान पहला सुना ना, तो मुझे खटकी चीज़ के यार सारे इसके ख़िलाफ़ ही क्यों हो रहे हैं, ख़ास तौर पे TLP वाले, क्योंकि हम एक वहाँ पे लाहौर में रहते हैं, हमारे बिल्कुल करीब हैं उनका जो आस्थाना सबसे बड़ा। तो चीज़ें खुलना शुरू हुई, जब खुलना शुरू होती हैं तो फिर खुलती जाती हैं। फिर मैंने सुनना शुरू किया, फिर मुझे पता चला कि नहीं यार ये जो चीज़ें कह रहे हैं ना ये नहीं है, ये रेफरेंस और के साथ बात करते हैं अली भाई, और ये चीज़ मुझे समझ में आई और फिर मैंने सुनना शुरू किया, फिर डीप डिग होता गया और सारी चीज़ें खुलती गईं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अली भाई के पास पहली दफ़ा तशरीफ़ लाया हूँ, काफ़ी सालों से सुन रहा हूँ, आज मौका मिला तो मैंने कहा चलें अली भाई से मुलाकात भी हो जाएगी। और आज आपके सामने तौहीद पे बात हुई और खुल के बात हुई। हम तौहीद अली भाई की तौहीद ही तो है जिस पे हम स्टैंड थे शुरू से कि भाई ये चीज़ें हमारे साथ होनी चाहिए, ये चीज़ें निकलनी चाहिए। और ये अभी तक लोग इन चीज़ों को डिफेंड कर रहे हैं, इनमें ज़रा नहीं है बात कि यार हम कुछ तो है इसमें बारे में करें। बिल्कुल यार मेन तौहीद अगर सही नहीं तो कुछ भी नहीं।
अभी भी वही तो ही सिखा रहे हैं कि कब्रों में जाते हैं वलिया तो ताकतें बढ़ जाती हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अभी भी लाहौर में आप जाएं देखें दरबारों पे वैसा ही रश है, वैसे ही है। हालांकि जो अरशाद भट्टी साहब ने एक पॉडकास्ट शुरू की है ना, उससे आपको बड़ी चीज़ों का आइडिया हो गया ये कैसे जवाब दे रहे हैं उनको, कैसे कई चीज़ों में ये डिफेंड भी नहीं कर पा रहे उनको, और इंशाल्लाह ताला कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि झूठ को कौन डिफेंड कर सकता है। बिल्कुल ऐसे। तो बस यही है, अली भाई को अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए जी, और ये इसी तरह इल्म का काम करते रहें और हम तक अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें। जो हमें चीज़ें पर नहीं पता वो और ज़्यादा हम कोशिश करेंगे इनसे सीखने की। बस यही है। अल्लाह पाक खैर। बहुत शुक्रिया सर। आइए और वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम भैया? मेरा उमैर इब्न अल खालिद। उमैर इब्न अल खालिद। इब्न अल खालिद कहाँ से? सियालकोट। सियालकोटी शहजादे सियालकोटी। क्या बात है सियालकोट शहर की। खैर खैरियत? बिल्कुल बेहतरीन। कैसे आना हुआ? मैं अली भाई को दोस्त के साथ आया था, पहले एक दफ़ा मैं आ चुका हूँ, लेकिन दोस्त जिद कर रहा था मुझे भी लेके चलो। 2-3 दफ़ा पहले प्लान कैंसिल हुआ, लेकिन आज फिर उठ खड़े हुए। कब से सुन रहे हो? मुझे कोई 1.5 साल ही हुआ, इतना पुराना नहीं सुन रहा, लेकिन एक चीज़ थी बचपन से जब देखता था, हमारे घर वाले जितने भी सारे कट्टर सुन्नी हैं, पापा जानी के सारे मुरीद हैं मेरे अलावा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब उनकी तालीमात में देखता था, तो जो उनका जो अमल देखता था, तो मुझे अंदर से आवाज़ आती थी कि ये हमारा दीन नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ मसला है, गड़बड़ है। क्योंकि इनकी तालीमात हिंदुओं के साथ बहुत ही जो है ना मिलती जुलती हैं। उन्होंने अपनी जो है ना देवियाँ पाली हैं, दूध उन पे चढ़ाए हैं। अभी आपने देखी होगी वीडियो, तो गोश्त पाक का पुतला बना उस पर भी दूध चढ़ा रहे हैं जैसे, और उन्होंने मंदिर बना लिए, इन्होंने दरबार बना लिए। तो ये मेरा दिल नहीं था मानता स्टार्ट से कि ये हमारा दीन नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो दीन ही इस वजह से है कि इनसे हमने अलहदा दिखना है। तो बस इसी कश्मकश में 1-2 वीडियो मेरी स्क्रॉल करते हुए अली भाई की गुजरी, जो कि इनको खरी खरी सुना रहे थे। तो मैंने कहा इस बंदे में थोड़ा करंट है, तो देखना स्टार्ट किया तो पता लगा इन्होंने तो एक्सपोज करके रखा हुआ है इनको, इनसे तो ये भागते फिर रहे हैं। फिर मैंने और अपने तौर पे भी जरा जो है ना दीन को पढ़ना शुरू किया, और फिर यही पाया कि अली भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो आज इंजीनियर साहब ने करंट अफेयर के तौर पर मुफ्ती अकमल साहब को जो जवाब दिया, रिबटल किया और उनको बताया कि तौहीद क्या है। एक तो वो तौहीद बयान करते हैं और सारे बरेलवी उलमा करते हैं। क्या लगता है अवाम परेशान है, एक कॉमन मुसलमान परेशान है, जिसका बिल्डअप हमारी तरह इसी माहौल में, इसी माशरे में हुआ। ये कहते हैं कब्रों में जाके ताकतें बढ़ जाती हैं। भाई तौहीद क्या है? खबरों में जाके ताकतें बढ़ जाती हैं। अभी हम रास्ते में आ रहे, तो मेरा दोस्त है साथ, उसने रास्ते में मारे तो एक दरबार देखा, उसके ऊपर काफ़ी झंडे लगे हुए थे ना। तो वो कहता यार, मैंने कहा यार ये अली भाई ये क्या सीन है? कहता यार जिस दरबार पे जितने ज़्यादा झंडे उस बाबे की उतनी ज़्यादा ताकतें। अच्छा। फिर थोड़ा सा और आ गया, एक दरबार आया, उसके ऊपर एक भी झंडा नहीं था। तो वो कहते मैं कहा अली भाई ये क्या सीन है? कहता अब ये जो बाबा है इसकी ताकतें कोई नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों की बातें हैं ना, अल्लाह तरफ पहुँचाता है बस। और इसकी ताकत मैसेंजर, अल्लाह अकबर, बस इसकी ताकतें कोई नहीं है। तो उधर से मैंने हिसाब लगाया ये तौहीद है इनकी। हाँ, यानी जिस दरबार पे जितने ज़्यादा झंडे उसके उतने ज़्यादा मुरीद। बस इनके हर बंदे की अपनी बात है। और तौहीद का ये जो है ना अमीर अहले सुन्नत और ये जो जमात है ते भी नहीं पता। जितना मैंने इनको स्टडी किया, मेरे घर में सारे मैं बड़ी कोशिश करता हूँ उनको समझाऊँ, लेकिन अब क्या करें, अल्लाह की तरफ से जिसको पढ़ता हूँ उसका दिल मैं तो नहीं मोड़ सकता, जिसको अल्लाह ने दावत रखनी है ना, दावत तो मैं करता हूँ, वो तो करता रहता हूँ। कैसा आज का एक्सपीरियंस? और बेहतरीन एक्सपीरियंस, सिक्योरिटी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, ऐसी होनी चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ इनको हमें प्रोवाइड करना चाहिए। आगे आपको पता है 2-3 दफ़ा ऐसे मामला हो चुके, 6-7 दफ़ा हो चुके हैं। तो बेहतर है यार, जितनी मर्जी सिक्योरिटी हो, मैं तो कहता हूँ ये भी कम है। बहुत शुक्रिया जी। आइए और कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? मिर्ज़ा मोहम्मद गुलसैन। मिर्ज़ा मोहम्मद गुलसैन। गुलसैन जी, क्या नाम, इसका मतलब क्या है? गुलसैन इसका नाम है, गुल का मतलब फूल है, गुलसैन का मतलब खूबसूरत। खूबसूरत फूल। भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। ठीक है। कहाँ से? मैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। वेलकम आपको जेएलएम अकेडमी में। बहुत शुक्रिया सर आपका, अल्लाह पाक आपको। कब से सुन रहे हैं इंजीनियर साहब को? मैं आई थिंक सुन रहा हूँ तकरीबन 2 साल हो गया आई थिंक। कैसा पाया? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अली भाई की काफ़ी बातें सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन पर अमल भी कर रहा हूँ, और मेरे काफ़ी दोस्त हैं उनको भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इनके ऊपर लगा दिया है कि आप इनको सुने और कुरान को और हदीस को फॉलो करें। नहीं फॉलो करें। तो कहते हैं गुमराह कर रहा है बंदों को, फितना इस उम्मत का सबसे बड़ा। वो तो मेरे घर में भी इशू है ये, फिर ठीक है ना, पर वो खैर हमारा वो मामला नहीं है, वो हमें रोकते नहीं है किसी काम से भी ना।
मैं आया हूँ, उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया है, पैसे भी दिए हैं, बाबा ने भी दिए हैं। इवन के बाबा रिसेंटली लाहौर गए थे जवेद अहमद गामदी साहब के पास भी, उन्होंने खुद बुलाया था मेरे बाबा को। मेरे बाबा खुद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतालिया करते हैं। इतनी की अलमारी है हमारे घर जो उनसी किताबों के साथ भरी है, सही बुखारी, सही मुस्लिम, तकरीबन काफ़ी सारी किताबें। वो मेरे वाला साहब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नॉलेज रखते हैं इस मामले में, उनसे भी हम डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है ना। तो कोई इशू नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो नाम है। कभी दुकान पे भी हमने स्पीकर अपना रखा हुआ है, सुबह दुकान पे आते सारी अल्हम्दुलिल्लाह सफाई करनी है साथ, तो अली भाई का साथ बयान होता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। कैसा रहा एक्सपीरियंस आके? हाँ जी, फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत अच्छा लगा है माशाल्लाह। हसरत थी दिल में कि यार जाना ज़रूर है एक बार ना। वीडियोस पे देखते हो, आज लाइव भी देख हाँ जी, लिया? आज लाइव भी देखा, आज मिल गया माशाल्लाह। ज़्यादा अच्छा लगा, वीडियोस अच्छी लगती है, लाइव मिलके ज़्यादा अच्छा, लाइव मिलके अच्छा लगा, लाइव मिलके बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, आज करंट अफेयर के तौर पर मुफ्ती अकमल साहब को जो रिबटल किया इंजीनियर साहब ने तौहीद के बारे में, एक तौहीद वो बयान कर रहे हैं, एक तौहीद इंजीनियर साहब बता रहे हैं, ये तौहीद क्या है? ये आम बंदे को क्यों कैसे समझ आएगी अगर ये कंफ्यूज करेंगे? तो ये हमें कुरान और हदीस पढ़नी पड़ेगी लाजमी। अली भाई के इतने बयान हैं, वो काफ़ी हमने इसके ऊपर तौहीद लिख के भी काफ़ी सुने हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये सुनने पड़ेंगे सबको। अगर वो कहेंगे हम नहीं सुनते इंजीनियर साहब को, तो ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान पाक है, किताबें हैं सारी अवेलेबल, तो उन्हें पढ़ें। तो कहते हैं बुजुर्ग जाते हैं कब्र में, ताकतें बढ़ जाती हैं, अब क्या करें? वो तो ऐसे कहानी करा रहे हैं सारे लोग, ठीक है ना। कहानी करा, हाँ जी, कहानी करा रहे हैं, क्योंकि अगर किसी से भी कुछ होता तो खैर हमारे रिश्तेदार वो सारे इन्वॉल्व हैं बाबू के साथ, तो मैं उनसे खैर अब जिद होती है मेरी, जब इकट्ठे होते हैं तो मैं तो बात वो तो छेड़ना मैं जान के छेड़ता हूँ कि बताइए क्या करते हैं आप, उधर जाते हैं आप, उनको बुलाते भी हैं, उर्स भी करवाते हैं आप, इतने लाखों रुपये लगाते हैं उन्हें बुलाकर। तो आप यही किसी गरीब को किसी बेटी की शादी कर दें चुप करके, ये बेहतर है कि ये बेहतर है, ठीक है ना। वो बस जिनसे मेरा मुकाबला है वो तो नहीं मानने हम भी खामोश हो। मुलाकात हुई अंदर की? हाँ जी, मैं मिल के आया हूँ अली भाई से। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भजन? सुहेल अहमद। सुहेल अहमद भाई कहाँ से? मुल्तान से। मुल्तान शरीफ से, अल्लाह के शहर से? जी जी। करमात तो आपने ढेरों ढेर देखी होंगी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी देखी। पहले मैं भी उसी फितरत उस पे था, क्या नाम है, उसी बरेलियत पे था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर साहब को सुना है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बहुत चेंज हो गई है। समझ आया है कि खट्टा कर लिया इंजीनियर साहब ने आपका करमात से, जी है ना? ये सब कहानियाँ ही हैं। अच्छा, कोई नहीं, कोई सारी हकीकत से बहुत ज़रूरत है। हकीकत वो है जो किताबों में लिखी है, वाक़ई कुरान पाक में जो लिखी है, जो सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ में लिखी है, बस। उसके अलावा बाकी सब ये तकरीबन इंजीनियर साहब का बस यूट्यूब की बरकत ही है, उसकी वजह से ही। नेगेटिव था पहले, पॉजिटिव था? पॉजिटिव ही था, लाजिम पहले तरफ से पॉजिटिव था। नहीं, लोग तो बातें करते हैं, उलमा नहीं जान छोड़ रहे, उलमा अभी तक कह रहे हैं फितना है, गुमराह है। मैं खुद दाऊद सामी में था, वो कहते थे इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं होती। हाँ, मदनी मुन्ने। हाँ जी, उसके बाद अल्लाह ताला ने उम्र की सादत नसीब की, वहाँ पे गया तो दिल में दिमाग में आया यार यहाँ पे लाखों लोग नमाज अदा कर रहे हैं इमाम काबा के पीछे, तो सबकी नमाज नहीं होगी। तो उसकी वजह से फिर थोड़ा खुला, फिर सबको सुना, लेकिन दिल जो मुतमईन हुआ वो इंजीनियर साहब की बातों में मुतमईन हुआ। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी, यानी पहले आप भी वही थे जो तौहीद को, वो वाली तौहीद मानते थे कि कब्रों पे जाके औलिया अल्लाह की ताकतें बढ़ जाती हैं, पहले वही तौहीद मानते थे आप भी? उस तरीके से तो नहीं मानते, लेकिन दिल में कुछ खटकता था कि भाई ये थोड़ा बहुत गलत है। ज़ाहिर बात है, या अली मदद या शेख अब्दुल कादर जिलानी मदद, तो बरेलवियों में तो ये चीज़ें आम है। वो ये चीज़ें आम है, हम भी उनसे सुनते थे, वो करते थे, लेकिन वो हमें मतलब ये बताते ना कि या का मतलब वो बताते थे हाजिर, वो हाजिर नाजिर बीच में लेके आते थे। उसी को फिर इंजीनियर साहब ने चेंज किया है कि नहीं, आज बताया इंजीनियर साहब ने हाजिर था कि क्या था, मुफ्ती अकमल साहब को जो रिबटल किया है बता दिया, बिल्कुल सही बता दिया, जो समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज और कौन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सैफुल्लाह है। सैफुल्लाह भाई किधर से आए हैं? गुजरांवाला से। गुजरांवाला, माशाल्लाह पहलवानों का शहर। जी। अच्छा जी सैफ भाई, कैसे आना हुआ आपका? जी, मैंने इंजीनियर साहब के क्लिप देखे थे। सही है। तो मुझे अच्छा लगा, ऐसा लगा कि जिस तरह इस्लाम का एक जो समंदर है ना, वो खड़ा हो गया था। अल्लाह, इन्होंने ऐसा उसमें फीडबैक दिया कि चलना शुरू हो गया। अल्लाह, ठीक है जी। तो मुझे अच्छा लगा, और भी उलमा सुने, सबका देखा, लेकिन जो इन्होंने उसमें कुछ जान डाली है ना, उसको रवा कर दिया। मुझे इसमें ये पसंदीदा जो सिलसिला वो मुझे यही अच्छा लगा।
अच्छा, शुरू से लेकर जो बिल्डअप हुआ और आखिर तक कौन सा मकतब फ़िक्र फॉलो करते थे आप? जो अकीदा घर से मिला वो क्या था? जी अकीदा तो वो जो अहल सुन्नत बरेलविज़म, वो जो पहले वो बचपन से वो जो हमारे वालिदैन ने जी जी सारी बात है, हाँ। वो ही था। तो इनका जो मैंने अपने तौर पे सुना, मैंने सारा ये तहकीक की, तहकीक करने के बाद मुझे अच्छा लगा कि जो इस्लाम का जो पीछे से जो सिलसिला जिस फिरके हाँ जो बिगाड़ हुआ जो इन्होंने उधर से शुरू कर दिया काम, तो वो इस तरह से मुझे अच्छा लगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह का शुक्र अदा करें, इस उम्र में भी आपको समझ आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपके दिल ने एक्सेप्ट किया और आपने मान लिया, वरना तो लोग अपनी अना को आगे ले आते हैं। ये देखे ना जी, असल में यही तो बात है, हमारी हयात का सिलसिला भी यही है कि हमने जाना किधर है, हम आए किस लिए थे, बेशक बेशक बेशक, क्यों आए हैं, जाना किधर है, बेशक। तो रास्ता बताते थे लेकिन रास्ता वो अंधेरा होता था। अल्लाह अकबर। तो मुझे ये रूहानी तौर पे हौसला हुआ है, ये हौसला जो है ना, मुझे लगता है कि मुझे कोई मंजिल दे दे इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे तो जो बात हो रही है आपको पता है, वो कुरान हदीस का रेफरेंस मिल रहा है, आप जाके वेरीफाई करें, आपको पता चलेगा कि ये बात लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई। हमने जो अबाउ जद्दार से दीन लिया वो लिखा हुआ नहीं लिया, वो सुन के ही लिया है। लेकिन जो उलमा जिनको परेशानी हुई है, लेकिन उनका जो मसला है ना, वो उनके जो इल्ज़ामात हैं ना, हाँ जी, वो अच्छे नहीं है। अपनी आप बताएं, इनकी ये अपनी बताएं, इंजीनियर साहब अपनी बताएं। ये तो मसला ही नहीं है किसी पे बिला वजह ये जो होता है इल्ज़ाम देना, बिल्कुल इल्ज़ाम तराशी, झूठा इल्ज़ाम, या किसी को ऐसा कर देना, वो मुनासिब नहीं है। इनकी तस्दीक करें, बेशक ऐसे ही है, तस्दीक करें, तस्दीक करके वो आप अपना जो मौक़िफ़ है वो बयान करें, बिल्कुल। लेकिन इल्ज़ाम तो अच्छा नहीं है, इल्ज़ाम तो अच्छा नहीं है। तो अगर आपने वो दूसरे उलमा हज़रात ने जो दूसरे जो फ़िरके थे, उन्होंने जो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए हैं, वो उनका क्या हुआ? सही बात है, बिल्कुल सही बात। उनका क्या, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर या तो वो भी हो ना, भी उन्होंने अपने आपको फैसला किया, फैसला कर दिया, कुछ भी नहीं, उसी तरह चल रहा है, वो भी उसी तरह ही चल रहा है, ऐसे ही। तो ये समझा अभी ये हमारे दरमियान में ये कैसे आ गया, ये नई फ्रेंचाइज कैसे खड़ी हो गई, इन्होंने ये कैसा कर दिया। अच्छा ये बताएं, जिंदगी गुजर गई आपकी माशाल्लाह, कितनी उम्र है? तकरीबन 67 साल हो गई। 67 साल, अल्लाह ताला आपकी और लंबी ज़िंदगी दे। 12 जी जितनी ज़िंदगी गुजरी, आज करंट अफेयर के तौर पर इंजीनियर साहब ने मुफ्ती अकमल साहब को रिबटल किया और तौहीद के बारे में बताया। मेरे आने से आपको तौहीद का जो एक तो शैतानी तौहीद है जो ये लोग बयान करते हैं, वो कहते हैं कब्रों में जाके औलिया अल्लाह की ताकतें बढ़ जाती हैं। असल में यही तो बात है, ये जो मैंने पहले बात किया है कि ये जो ठहरा हुआ इस्लाम था ना, उसमें जान आ गई है। मैं समझता हूँ जान आ गई है। मेरा सवाल ये था कि आपको इस तौहीद के बारे में कब पता चला? मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि इसमें तौहीद ही है सारे, कि जो ठहरा हुआ इस्लाम था वो उसमें जान आ गई है, वो चल पड़ा है। 60-62 साल के बाद आपको ये बात समझ आई? मैं ये कह रहा हूँ कि पहले जो बताते थे उधर उसमें वो उसी तरह के चलते थे। सही बात है, बिल्कुल सही। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो जो था वो ही उसी तरह ही उसी तरह लेके चल रहे थे, उसी तरह ही चल रहे थे। सही बात है। तो अभी ये जो मीडिया, जो आपका ये जो चैनल है, ये सिस्टम है, इसकी बदौलत अवेयरनेस आ रही है, लोगों को समझ आ रही है। जैसे बुजुर्ग आदमी को भी पता चला है, मैंने देखा है, तो मैं इधर आ गया हूँ। अल्लाह का करम है। मैंने देखा है, तो मैं अपने तौर पर कितने दोस्तों को मैं जिस बंदे को भी बताता हूँ, मैं तो इनका ही बताता हूँ कि यार ये कैसा काम हो गया।
पहले क्या था अभी क्या है, इसमें समझ नहीं आ रही। सही कह रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही ये क्या हो गया। बेशक है, बेशक है। तो मुझे कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा आज इधर आके? लाइव देखा, लाइव सुना उनको? मैं तो मुझे तो उलमा कहते हैं बदतमीज आदमी है अच्छा लगा। और गुस्ताख है। देखी आपने इस तरह की कोई बात इसके अंदर? कोई नहीं ऐसे। वो जो है वो उनको वो ही अच्छा नहीं लगता। जो है वो ही नहीं अच्छा लगता, जो है वो ही उनको अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही। अगर बिल्कुल। वो अच्छा लगता तो ऐसे ना तो बात सुन लेते, बात सुन, बिल्कुल सही। वो भी अपनी बात करते हैं। हाँ, इल्मी या दलाइल अपनी रखे, वो बात रखे हैं, दलाइल बिल्कुल इल्मी दलाइल वो रखे हैं। बात नहीं है अभी। सही है। अगर उन्होंने अच्छा बताया होता तो ये ऐसा नहीं, फिर सारे लोग ऐसे करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मैं पहली दफ़ा आया, मैंने उन्होंने आप ऐलान किया, फिर पहले दफ़ा कौन आया तो सब ने, मैं तो सारे हाल में देखा हूँ। सब ने कहा मैं पहली दफ़ा। कितनी दफ़ा कितनी देर से ये चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल पिछले और 90% लोग पहली दफ़ा आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये हर बंदा ये इस हाल में अगर पहली दफ़ा आता है तो पूरे कितने लोग जी जी लाखों होके चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आने वाली नस्ल इंशाल्लाह ये सारे इन जितने भी इनकी फ्रेंचाइज हैं ना जो इन्होंने अपने अपने किले खड़े किए हुए थे वो इंशाल्लाह बसम हो जाएंगे। नहीं वो हो चुके हैं, हो चुके हैं, अल्लाह अकबर, जबरदस्त हो चुके हैं। हो चुके। जो मैं सुन रहा हूँ ना, हाँ हाँ हाँ, उसमें जो उनका इल्ज़ाम तराशी है, बस इल्ज़ाम तराशी और ऐसे कुछ नहीं किया किसी ने। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे इल्ज़ाम तराशी किया, बिल्कुल ऐसे, लेकिन वो दलील नहीं दी, दलील नहीं किसी ने भी दी। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद हुसनैन है और मैं कामुकी से आया हूँ। कामुकी से? वेलकम जेलम अकेडमी में। थैंक यू। अकेले आए हो? जी मैं अकेला ही आया हूँ। खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। किधर निकल आए हो? ये रास्ता जो हमने अपनाया है, हाँ, मैंने अपनी मैट्रिक से तकरीबन इसी रिसर्च में था, लेकिन इंजीनियर साहब से तकरीबन 2017-18 में उनके मतलब रोशनास हुए और पहला तारुफ उनका इंतहाई नेगेटिव हुआ। लेकिन मेरा प्राइमरी मकसद ये था कि जो भी कुरान व सुन्नत के मुताबिक जो मौक़िफ़ है उसके मतलब मुझे दलाइल मिल जाए, वो भी थोड़ी जगह पे, मतलब मुझे ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। तो वो इंजीनियर साहब ने वो प्रोवाइड किया। आल्दो अहले हदीस की मदद से मेरे तौहीदी अकायद पहले से बन चुके थे, लेकिन यह है कि उनको पुख्ता करना और मुख्तलिफ मामलात में जो है वो बेहतर करना उनकी मदद से आया। और उनसे हमें ये चीज़ सीखने को मिली कि अगर आप दीन का काम कर रहे हैं, यू मस्ट बी रेडी फॉर द हेट। आपको गालियाँ भी सुननी पड़ेंगी, हर चीज़ सुननी पड़ेगी। और अगर आप 1000 बंदे को कह रहे हैं तो आप यकीन रखें कि कोई एक ही आदमी होगा जो कि आपकी बात सुनेगा, ज़्यादातर आपको बुरा कहने वाले होंगे। और मैं ये करके खुद देख भी चुका हूँ। और अक्सर लोग आपको ये कहेंगे कि तुम पागल हो, तुम्हें क्या तकलीफ़ है, या जो जगह जहाँ लगा है उसे लगा रहने दो, या जो जैसे नमाज़ पढ़ रहा है उसे पढ़ने दो। जी जी सही है, सही है। बिल्कुल। अगर हम यही बात कर रहे हैं कि जो जिस तरह नमाज़ पढ़ रहा है उसे पढ़ने दे, तो इसका मतलब है कि फिर ज़हीरा हदीस में जो नमाज का तरीका सारे रिपोर्ट हुए हैं उन सब की तो वैल्यू नहीं रही। और जो मुहद्दिसीन ने काम किया, जो फुक़हा ने बयान किया, मतलब वो सारी रिसर्च जो है ना वो पानी में बहा दें और फिर अपनी मर्जी कर लो, अपनी मर्जी का इस्लाम ले और क्या, अपनी मर्जी का ले। और कुरान सुन के अगर आपने सही दलाइल देखनी है तो आप इंजीनियर साहब की वीडियो देखते हैं, आप उनके रेफरेंसेस नोट कर लें, लोगों से बहसें करें। खुद शायद आपको इतनी समझ ना आए, जब लोगों से आप बहसें करेंगे, लोगों की जब आप हेट लेंगे, तो उसके काउंटर जब आप चीज़ें रिसर्च करने शुरू करेंगे, आप उतना अमन के साथ सीख नहीं सकते जितना कि आप लोगों की हेट की वजह से सीखते हैं। जब लोग आपका रद्द करते हैं कि ये चीज़ ऐसे गलत है, और इसमें आप परवाह ना करें कि आपका करीबी दोस्त ही क्यों ना, चाहे वालिदैन ही क्यों आपकी मुखालफत ना करें, आपने हमेशा यही करनी है कि मैंने हक़ को देखना। और माँ बाप चाहे जो मर्ज़ी हो, आपने उनकी वैल्यू को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि किसी की अगर वो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि माँ बाप की हम इज़्ज़त करते हैं दीन की इत्तबा की वजह से, उनके हम पे एहसान है, तो हमने दीन के मुताबिक ही उनको लेके चलना है। सही हो गया। अगर वो दीन के ख़िलाफ़ है, दुनिया के मामलात में उनके साथ उसने सलूक रखे, लेकिन बाकी मामलात में उनकी ना माने, ना अपने वालिदैन की, चाहे वो रोएं, चाहे आपको काफर कहें, चाहे आपको घर से निकालने की कोशिश करें, उनकी बात की ज़ीरो वैल्यू अगर वो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। और इसके लिए हमेशा लोगों को ये कहें कि अंजार, क्योंकि डर
जी, बिल्कुल जो बंदा डरता है, जिसे फिक्र है, उसे बात समझ आएगी। जिसे फिक्र नहीं है, कुरान ने सीधा कहा है कि ये मुत्तकीन के लिए है, जो बचना चाहते हैं, जो डरना चाहते हैं। खुशी की खुशखबरी भी उनके लिए है जो डरना चाहते हैं और जो बचना चाहते हैं। सही होगा, सही होगा। दूसरों को आप 1000 बहाने 1000 दलाइल खोल के दे, बात समझ हरगिज़ नहीं आएगी उनको। सिर्फ उस बंदे को समझ आएगी, क्योंकि कुरान का वाज़ेह ऐलान है कि जो मुत्तकी है, जो बचना चाहता है, जो डरता है, इस दावत से रसूलुल्लाह को नज़ीर बनाकर भेजा गया कि आप डर सुनाने वाले और डरने वालों को हिदायत मिलेगी। और मेरा मुख्तसर यही पैगाम है कि जो भी दीन का काम करना चाहता है, दीन सीखना चाहता है, उसे चाहिए कि वो कुरान सुन्नत के दलाइल को एक जगह जमा कर ले, एक एक मसले को एट अ टाइम लेके चले। एक से ज़्यादा कोई उलझाने की कोशिश करे कि मुझे फ़लाँ बताओ, फिर फ़लाँ में ऐसा होगा, फ़लाँ में ऐसा होगा, उसकी बातों में ना आए। जो बात कर रहे हैं उसी बात पे रहें और उसी मौजू को, एक एक मौजू को आप अकायद को स्टडी करें। क्रिटिकल वीडियोस जो हैं उनको बारी बारी 1 बाय 1 देखें और आप इस लेवल पे पहुंच जाएगी कि आपका मुकाबला ना सिर्फ कोई कर पाएगा, बल्कि आपको जवाब में सिर्फ गालियां ही देने के अलावा उनके पास कोई दलील नहीं बचेगी। फर्स्ट टाइम कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन एक्सपीरियंस। जी मुलाकात भी हुई है। मिल लिया जी ना साहब ने? जी बहुत शुक्रिया। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।